the award winners of the sports meet. We're happy to be able to celebrate your triumph. The dais, requesting them to take their seat. And now I'd like to hand over to Shri Mohammed Abdul. Honorable Minister for States, Environment, Forest and Climate Change, Government of India, and welcome to this ceremony, sir. I request Y. Narasimha Rao to please present a bouquet to Muhammad Mahmood Ali, Deputy CM for Telangana. Sri Vijayanand Rao to present a bouquet to Sri S.S. Negi, Director General of Forest, Government of India, to please present a bouquet to Muhammad Arif, present a bouquet to Sri B.R. Meena, Principal Secretary, Environment Secretary, 23rd All India Forest Sports. I welcome you all, sir. Now, ladies and gentlemen, we'll have 88 members. Andhra Pradesh is situated in the southeastern coast of India and is the 8th largest state in India. Andhra Pradesh is well known for its rich natural resources, temples and rivers, the rich cultural heritage, ancient architecture, and it is one of the fastest developing states in India. It is still rich in forestland and tribal culture. Up next, DFA is followed by the Forest Survey of India, Dehradun, whose points start their dedication. Please give them a round of applause. This is a 26-member contingent, followed by the Golden Beaches, but also a state rich in history, rich in culture, and home to some. Goa is followed by Gujarat, coastline, and the Great Ran of Kutch. It offers varied cultures, business, religious, and Honorable Minister of State, accompanied by Sri Muhammad Mahmood Ali, Deputy Minister of Telangana State. The manager of Karnataka, Sri Suresh, Principal Chief Conservator of Forest, Karnataka, has lifted the trophy, overall champion trophy for this 23rd All India Forest Sports and Games meet. Overall women champion, I request Mahmood Ali Saab, Deputy Chief Minister of Telangana, to kindly Prabhakaran, IFS officer from 2011 batch, for scaling the Mount Everest by the Ministry. Though the first expedition of IAS officers could not succeed due to the earthquake-impacted avalanche on the Nepal side of Mount Everest, Shri Prabhakaranji's courage and confidence and his passion to reach the summit drove him to attempt again in the next expedition from China. Sir, on behalf of the Telangana Forest Department, sir. The manager of Karnataka, Sri Suresh, Principal Chief Conservator of Forest, Karnataka, has lifted the trophy, overall champion trophy for this 23rd All India Forest Sports and Games meet. The runner-up trophy, team manager of Chhattisgarh, to please manager and members lifting the trophy for the runner-up. Next, we have the individual champions. Individual men championship goes to Ali Baba of Tamil Nadu. Sri Muhammad Mahmood Ali Saab, Deputy Chief Minister of Telangana, to kindly hand over the individual championship to Ali Baba of Tamil Nadu.
Prabhakaran, IFS officer from 2011 batch for scaling the Mount Everest by the Ministry. To Mr. Prashant Verma, Principal Supervisor of Forest, Uttar Pradesh, for again, ladies and gentlemen, 23rd All India Forest Sports Meet is coming to a close. Shri Anil Madhav Dave ji, Minister of State for श्री B.R. मीना जी, IAS प्रिंसिपल सेक्रेटरी, P.K. झा जी, PCCF तेलंगाना, मुनिंद्र जी सेक्रेटरी, और यहाँ इस सभागार में विशाल स्टेडियम के अंदर सभी राज्यों से आए हुए खिलाड़ी भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों और साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए बधाई देता हूं कि ओलंपिक की जो चेतना है वो गोल्ड मेडल जीतना नहीं है। ओलंपिक की जो मूल चेतना है वो खेलना है, और खेलना मालूम नहीं दुनिया ने कब सीखा, लेकिन कम से कम 5000 साल से, और अगर उससे भी पीछे जाऊं तो 10,000 साल का इतिहास उपलब्ध है जब भारत खेलता आया है। खेलना बच्चे का स्वभाव है, लेकिन बड़े होने पर खेलने की ये प्रकृति घट जाना ये भी स्वभाव है, लेकिन प्रयत्नपूर्वक जीवन भर खेलते रहना, इसके लिए बहुत प्रयत्न लगते हैं। जैसे योग सिखाने के लिए कोई बहुत ताकत नहीं लगती, लेकिन रोज योग करने के लिए ताकत लगती है। और ये मैं किताब पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं करके बोल रहा हूँ। इसलिए जब खेलना होता है तो एक बड़ी चीज़ है, आप लोग खेलें। हार जीत चलती रहती है, मैच होता है तो हार जीत होती है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप सब लोगों ने इस अखिल भारतीय खेल प्रतियोगिता के अंदर हिस्सा लिया। आप आए, आप 4-5 दिन यहाँ रहे, साथ रहना, साथ खाना, साथ घूमना और साथ आनंद प्रमोद करके खेलना, इन सब के लिए मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। मैं यहाँ पर तेलंगाना स्टेट के उप मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस खेल के आयोजन के अंदर इतनी तत्परता बरती, इतना उत्साह बरता, और उनके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपके संरक्षण के कारण ये खेल इतने अच्छे से यहाँ हो पाया। अन्यथा ऑडियंस होना एक बात है, लेकिन घर के अंदर मंडप जमाना दूसरी बात होती है। और चूंकि मैं इसी प्रक्रिया को सालों तक करता रहा हूँ, मंच पे चढ़ना तो मैंने अभी कुछ सालों से ही सीखा है, वरना मैं दरी ही बिछाता रहा हूँ। इसलिए मैं जानता हूँ कि दरी और टेंट बिछाने में कितना दम लगता है। इसलिए मैं सबसे पहले उसे बधाई देता हूं जो उस मैदानी काम को करता है। मंच पे तो क्या है, ठीक है, आइए भाषण दीजिए, जाइए, वो बड़ी बात नहीं है मित्रों। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी आपके माध्यम से संदेश उन्हें जरूर पहुंचा दें कि बहुत बहुत धन्यवाद इन सब कार्यक्रमों को संरक्षित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, पोषित करने के लिए। लेकिन यहाँ मैं दो बातें आपको कहना चाहता हूँ। वन विभाग बहुत पुराना विभाग है, और अंग्रेज लोग जब भारत में आए तो उन्होंने भारत के अंदर 2 नियम बनाए। एक IPC की धारा बनाई और दूसरा वन नियम बनाया, फॉरेस्ट लॉ बनाया, फॉरेस्ट एक्ट बनाया। और अंग्रेज बहुत बुद्धिमान थे, उनको मालूम था कि इस देश को चलाने के लिए मुझे क्या करना है और रिसोर्सेज कहाँ हैं। IPC की धारा उन्होंने लोगों को नियंत्रित करने के लिए की, और वनों के अंदर जो रिसोर्स थे उसको अपने विकास के लिए प्रयुक्त करने के लिए उन्होंने इन सब धाराओं का प्रयोग किया। और उसके कारण आज देश के अंदर वन विभाग के पास बहुत बड़ा अमला है, और वन विभाग के पास जो अमला है इसका सीधा संबंध वन से है, वन्य जीवन से है और वन्य की संपदा से है। और वो आप लोग हैं जिनके पास वन की ये संपदा है।
और आपके संपर्क में अनुसूचित जनजाति के लोग आते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जिस खेल को उत्साह करने का काम आपने किया, इसी साल 2016 से मकर संक्रांति पोंगल से अगला रविवार जो भी आए, जो भी अनुकूलता हो, सारे देश के अंदर ये सारे पीसीसीएफ इस काम को क्रियान्वित करने के अंदर और सारे अधिकारी इस काम को करें, इसकी चिंता सब कर लेंगे। प्रत्येक वन ग्राम के अंदर वन ग्राम खेल महोत्सव एक दिन के लिए होना चाहिए। और मैं प्रत्येक खिलाड़ी से निवेदन करता हूं कि ये जो आग यहां जल रही है ना, इस आग को अपने गांव तक ले जाइए। गांव के लोगों को लगना चाहिए कि वन के अंदर काम करने वाला वनकर्मी, फॉरेस्ट गार्ड, वन के काम करने वाले अधिकारी, ये हमारे साथ एक पूरा दिन उत्साह और आनंद के साथ खेलते हैं। और उस खेल के लिए आप बहुत बड़े संसाधन वाले खेलों की कल्पना मत करिएगा। जो स्थानीय खेल है वो खेलें, जो उस स्थान पर सालों से सदियों से खेले जा रहे हैं। और उसके अंदर 5 साल से छोटा और हर ऐसा बड़ा उम्र का आदमी जो खेलने में अक्षम है या बीमार, इनको छोड़ करके सारे लोगों को खेल खेलना है। इसमें महिला और पुरुष का कोई भेद नहीं होगा और कोई भेद नहीं होना चाहिए। और पूरी कोशिश होना चाहिए कि सब ने मिलकर के खेल खेलना है। क्या बात है कि इंग्लैंड के अंदर और यूरोप के अंदर रात को 10 बजे भी कोई लड़की शॉर्ट्स पहन करके साइकिलिंग करती हुई और दौड़ती हुई मिल जाती है, और भारत के ये वातावरण दृश्य देखने में क्यों नहीं आता है? क्या खेलने का पूरा अधिकार केवल पुरुषों ने ले रखा है? बिल्कुल नहीं ले रखा। और अगली बार जब कॉन्टिंजेंट आए तो हर प्रांत इस बात की चिंता करे कि स्त्रियों का प्रतिशत, लड़कियों का प्रतिशत पुरुषों की तुलना में बराबर होना चाहिए। ये थोड़ा बहुत दिखाने के लिए 2-5 नहीं होना चाहिए। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, इसको मैं मानता हूँ, लेकिन ये डोमिनेशन होना नहीं चाहिए। इट शुड बी इक्वल। इसलिए सारे वन ग्रामों के अंदर इसी साल प्रयत्न करके जितने भी लोग खेलेंगे, लेकिन हर एक ने खेल खेलना चाहिए। मित्रों, जब खेल खेलते हैं ना, कुछ भी खेलिए, कबड्डी खेलिए, खो खो खेलिए, रस्सा कस्सी खेलिए, और भी जो देसी गेम होते हैं वो खेलिए। और ये विचित्र टाइप के एनजीओ सेक्टर्स खड़े हो गए, ये नहीं करना चाहिए, ये खेल से ये खराबी होती है, ये खेल से ये खराबी। खेलने से कोई खराबी नहीं। और खुशी से 4-6 घंटे उत्साह का वातावरण, खेल कूद और हारने जीतने के खेलों की तुलना में खेल खेलने पे प्रधानता देना चाहिए। और पूरा गांव जब खेल मिलकर के खेलेगा तो उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव मैं आपको बताता हूँ, पूरा गांव उस फॉरेस्ट गार्ड का मित्र बन जाएगा, उस फॉरेस्ट अधिकारी का मित्र बन जाएगा, क्योंकि वो कहेंगे ये हमारे साथ एंटरटेनमेंट का माध्यम बनते हैं। एक पिक्चर दिखाने किसी को ले जाओ तो वो हमको याद रखता है, पूरे दिन भर हम खेल खिलाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो मित्रों, ये खेल सीमित न रह जाए, ये खेल लिमिटेड न रहे और ये सारे वन ग्रामों के अंदर जाए। फिर आप देखिए, जंगल में आग लगेगी तो आपके साथ खड़े रहेंगे उसे बुझाने के लिए। फिर आप देखिए, पोचर्स अगर आएंगे और अगर शेर हिरण का शिकार करेंगे तो वो इन्फॉर्मर के रूप में आपको सूचना देंगे। फिर आप देखिए कि वो आपका जंगल को बचाने के लिए मित्र है। और एक धारणा निकाल दी थी, ये गोरे अंग्रेजों ने हम लोगों में डाली थी कि जंगल को वनवासी काटता है, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति काटता है। बिल्कुल नहीं काटता साहब। उसके सिर के ऊपर जो गट्ठर है ना, वो सूखी डंठल लकड़ियों का है, और अगर हरी लकड़ी काटेगा तो शाम को रोटी कहाँ बनाएगा? लकड़ी तो काटना वाला एक अलग ही कॉकस है, वो अलग ठेकेदार हैं, वो अलग लोग हैं, उनकी अपनी एक अलग दुनिया है। जैसे पोचर्स की अलग दुनिया है, वैसे उनकी अलग दुनिया है। मैं चाहता हूं कि वो गांव के सारे लोग आपके पीछे खड़े हों, आपके कहने पर वो खड़े हो जाएं। और अगर आप उन्हें अपने साथ खड़ा रहना चाहते हैं तो साथ साथ खाइए और साथ साथ खेलिए। ये फंडामेंटल लॉ बता दो, जो साथ खाते नहीं है वो साथ लड़ नहीं सकते,
जो साथ खेलते नहीं हैं उनके साथ कोई नहीं है, वो अलग अलग दुनिया में आप बने रहिए कि कुछ कपड़े वपड़े विदेशी पहन लीजिए और दुनिया चलाते रहिए। इसलिए इस देश के अंदर मैं इस परंपरा को इसी वर्ष से शुरू करना चाहता हूँ कि वनग्रामों के अंदर खेल महोत्सव का आयोजन होना चाहिए और खेल महोत्सव के लिए कोई अनुदान राशि का नाम नहीं लेना, वो सब वहीं खेलना चाहिए, वहीं के रिसोर्सेज लेना चाहिए, वहीं से सारी चीज़ें लेना चाहिए। इतना बड़ा तेलंगाना का आंदोलन की लिया, कोई पैसा आया क्या दुनिया में कोई से? समाज ने उसे इकट्ठा किया और समाज ने उस काम को किया। वैसे ही गांधी जी ने जितने भी आंदोलन किए, क्या हुआ उसको? और इतने बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहे दुनिया के अंदर, तो हमें उन्हीं रिसोर्सेज को होता लगता क्या, एक रस्सी लगती है, एक कबड्डी का मैदान लगता है, चूना लगता है, एक रस्सा कस्सी के लिए रस्सी लगती है, एक वॉलीबॉल खेलना होता है, एक बॉल सबके पास होती है, स्कूल के अंदर होती है, खेलो। लेकिन ये खेल का महोत्सव शुरू करना बहुत ज़रूरी है मित्रों। इसके लिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ और सारे वन के अधिकारी फ्रॉम डीजी फॉरेस्ट को लगाकर वन कर्मी तक, फॉरेस्ट गार्ड तक, सब इस काम के अंदर लगें, जिससे कि देश में खेलों को लेकर के एक वातावरण हो। और अंत में अपनी बात को कहने के लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आप सब लोग जो खेल रहे हैं, आप ये सुनिश्चित करिए कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के होने वाले खेलों के अंदर केवल 4 दिन के लिए घूमने जाना है, ये विषय नहीं होना चाहिए। और स्पोर्ट्समैन दिखता है। और सबसे पहली बात यह है कि दीवार के किनारे खड़े हो जाओ, अपनी एड़ी को दीवार से लगाओ और अपनी गर्दन को, सिर को दीवार से लगाओ। अगर आपकी आंख आपके अंगूठे को देख सकती है, इसका मतलब है व्यक्ति स्पोर्ट्समैन है। और बीच में ये जो पेट आ जाए तो समझ जाना कि झंझट हो रही है। अपन घूमने के लिए आए हैं, खिलाड़ी का पेट बाहर नहीं आ सकता। ये 50 प्लस की बात छोड़ दीजिए, मैं 50 के नीचे बात करता हूँ। 50 प्लस का पेट अगर बाहर आता, 50 के अंडर का अगर पेट बाहर आता है तो ये चिंता का विषय है और इसको दूर करने की कोशिश करना चाहिए। भारत डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का राजधानी बन रहा है। मैंने कहा बनने का कोई कारण नहीं है, मध्य भाग जो आपने बढ़ा रखा है इसको कम करना चाहिए और स्पोर्ट्समैन का मध्य भाग नहीं बढ़ना चाहिए। और स्पोर्ट्समैन के लिए केवल इवेंट में आना महत्वपूर्ण नहीं है, 365 दिन उसको स्पोर्ट्स खेलना ही चाहिए। सुबह उठ के बाहर आना ही चाहिए, शॉर्ट पहननी चाहिए, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, उसने खेलना ही चाहिए। क्योंकि आप जब खेलते हो तो आप अपनी बेटी के लिए एक रोल मॉडल बन जाते हो, आप अपने बेटे के लिए एक रोल मॉडल बनते हो और किसी के लिए बाद में बनते नहीं। उस बेटी के लिए पहले बनते हो, उसको लगता खेलना है। मेरे पिताजी खेलते हैं, मेरी माँ खेलती है, और जिनके माँ बाप नहीं खेलते वो अपने बेटे को अगर सचिन तेंदुलकर और बाकी कुछ बनाना चाहते हैं तो आई एम सॉरी, आप ऐसा सिद्धू बनाइए, कुछ भी बनाइए, लेकिन आप नहीं बन पाएंगे। आपके घर में अगर खिलाड़ी पैदा होना है तो आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। इसलिए खेल जरूर खेलिए और ये मध्य भाग को ज़रा अंदर ले जाइए, क्योंकि ये मध्य भाग एक बैड इंडिकेटर है। वो 24 घंटे और ऑफिस में लगाकर सड़क पे बताता रहता है ये आदमी आलसी है, ये आदमी आलसी है। और इस मामले में मैं बहुत कठोर हूँ कि ये हम जापान चले जाओ, मुंबई चले जाओ, आपको आदमी बहुत स्लीम दिखता है। क्यों? क्योंकि वो दिन भर पैदल चलता है। तो हम सब लोगों को स्पोर्ट्समैन के अंदर 365 दिन खेलना चाहिए। और जो लोग बहुत अगर नहीं खेल सकते हैं तो मैं उन्हें प्रधानमंत्री जी का यह संदेश देना चाहता हूँ कि कुछ संभव न हो करना तो 5 सूर्य नमस्कार जरूर करें। इट इज अ कंप्लीट एक्सरसाइज। और जो लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, ऐसे लोगों को अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा का चेहरा देख लेना चाहिए। ऐसे लोगों को भारत के प्रधानमंत्री का चेहरा याद कर लेना चाहिए। अगर उनके पास योग करने का समय है तो भैया तू कौन हो गया कि तेरे पास समय नहीं है? ऐसी कौन सी व्यस्तता हो गई? यू हैव मिसमैनेज्ड योर लाइफ एंड यू आर सेइंग आई डोंट हैव अ टाइम। सॉरी सर, रात को जो स्क्रॉल करते हो ना 4.5 घंटे तक टीवी के ऊपर अलग अलग चैनल जो बंद करें, क्योंकि वन विभाग से एक अपेक्षा है
भारतीय होने से एक अपेक्षा है और उस अपेक्षा को पूरा करने के लिए जरूरी है। और एक सिंपलेस्ट सूर्य नमस्कार को इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें किसी की पूजा नहीं करना है, किसी की आराधना नहीं करना है। मेरे शरीर को इन 11-12 ढंग से मोड़ना है और उसके कारण मेरे शरीर के सारे अवयवों का व्यायाम। और अगर मैं प्राण के साथ उसको करता हूँ, मैंने सांस लेने और सांस छोड़ने के साथ करता हूँ, तो एक कंप्लीट एक्सरसाइज। लेकिन जो कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, उनको मैं बता देना चाहता हूँ, 13 सूर्य नमस्कार लगाने के लिए 7.5 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा समय नहीं लगता। इसलिए मैं आग्रह जो कर रहा हूँ वो 365 दिन का कर रहा हूँ। मैं आग्रह जो कर रहा हूँ वो खेलने का कर रहा हूँ। मैं आग्रह जो कर रहा हूँ केवल इस बात का कर रहा हूँ क्योंकि अगली पीढ़ी के सामने भाषण देने के बजाय एक रोल मॉडल के रूप में कि मेरे डैडी रोज सुबह उठ करके दरी बिछाते हैं, उस पर योग करते हैं, मेरे माँ जो है वो रोज खेलने जाती है। ये रोल मॉडल होना है। बायोलॉजिकल पिता होना अलग बात है, पिता होना अलग बात है। तो ये जो पिता होना है, इस भूमिका को हम सबको निभाना है। और ये भूमिका एक स्पोर्ट्समैन से ज़्यादा अच्छी कोई नहीं निभा सकता, क्योंकि वो अपने सामने एक साक्षात मॉडल बन के दिखाता है। और मैं पूरे इस एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट को और विशेष करके उसके माध्यम से देश को भी ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि आप देखिए, एक व्यक्ति ने योग पर कॉल दिया, आज 190 से ज़्यादा देश करने लगे। बताओ, जब योग बना भी होगा तब भी नहीं सोचा होगा कि 190 देश करेंगे। जहाँ जाता हूँ दुनिया के अंदर लोग मेरे से पूछते रहते हैं, तो आखिर हो गया है। क्यों? क्योंकि जिस आदमी ने कॉल दिया वो आदमी उसको सालों से कर रहा है। और तपश्चर्या के अंदर बल होता है। तलवार में बल होता है कि मालूम नहीं, बारूद में बल होता है कि मुझे मालूम नहीं, तोपों में दम होता है कि नहीं होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन तपस्या में बल होता है, ये मैंने देखा। और वो बल हम में से भी दिखना चाहिए और वो दिख सकता है और हमको दिखाना चाहिए। इसलिए मैं आप सब लोगों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप वन ग्रामों के अंदर खेल का वातावरण आगे बढ़े। इतना ही निवेदन है। आप सब लोगों ने मुझे बुलाया और मैं आप सब लोगों के बीच में आ सका, इसके लिए मैं ईश्वर का भी धन्यवाद देता हूँ और आप सब लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोगों ने मुझे अपने बीच में बुलाया। मैं राज्य सरकार को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने भी मुझे यहाँ अपने बीच में बुलाया। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार लखनऊ में मिलेंगे, कोई कहीं जाएगा नहीं, आप भी रहेंगे, मैं भी रहूँगा और हम इस बात का मूल्यांकन फिर करेंगे कि साल भर हम कैसे चलें, साल भर हम किस दिशा में चलें। कोई ये अर्थ मत निकाल लेना कि मैं मिनिस्टर परमानेंट हूँ, मेरी जगह दूसरा भी हो सकता है। मैं रहूँगा मतलब है कोई भी कोई रहेगा, क्योंकि संसार के अंदर केवल वो ही जानता है कि कल सुबह कौन कहाँ हो, बाकी कोई नहीं। और मुझे उसकी ताकत पर भरोसा है और मुझे अपनी ताकत मालूम है, क्योंकि मेरी ताकत उसकी ही ताकत है, मेरी कोई ताकत नहीं। इसलिए जब मैं कह रहा हूँ अगले साल, इसका मतलब है आप तो रहने वाले हैं अगले साल, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम मिलें तो इस बात का मूल्यांकन करें कि मेरे कॉन्टिनेंट के अंदर, हमारे कॉन्टिनेंट के अंदर लड़कियों का प्रतिशत बराबर का है कि नहीं है, बराबर की लड़कियाँ वहाँ खेल रही हैं कि नहीं खेल रही, मैं नियमित खेल का अभ्यास कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, और खेलने के लिए खेलना ये महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए वन ग्रामों के संबंध में आप सब लोग, वन ग्रामों के अंदर जो खेल महोत्सव होना है उसके संबंध में आप सब विचार करिए। ऊपर के अधिकारी इस संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन और संरक्षण देंगे और आप सब लोग इस काम को करें। आप सब लोगों ने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। Thank you, sir, for your valuable address. Now, as a Principal Chief Conservator of Forest and Head of Forest Force Telangana, Chair to the Minister of State.